हुए नहीं हुए? नहीं हुए। एक सेमिनार हुआ तो काफी आता होगा ऑलरेडी। हाँ तो तुम अगर रोड साइड पे खड़े हो एंड अ कार ओवररन समबडी, ठीक है, तो विक्टिम जो है वो पड़ा हुआ है सड़क पे। What are you most likely to do? scene safety. Scene safety. क्या होता है? Scene safety. Make sure that the location is safe and you are not going to harm people. So before going into it, you will ensure that you are safe. Yes. ठीक है? So the basic thing is that whenever you come across any accident or injury, or anybody comes across any accident or injury, you are likely to panic. What is panic? Faced with the situation, सडनली यहाँ पे आग लग जाए, तो यहाँ पे आग लग जाए तो ये सब दरवाजे बंद हो गए ना। Faced with the situation, you desperately want to do something about it, but you do not know what to do. Correct? Panic is a situation do not know what to do in a time critical situation, in a time critical event. मतलब ब्लड निकल रहा है, अगर निकलता रहा तो मर जाएगा, करेंगे, पता नहीं क्या करें। तो पैनिक का हमेशा इलाज जो है क्या होता है? प्लान। तो हम लोग प्लान करते हैं कि प्लान That plan आज की प्लान है, कल जब नॉलेज ऐड होगी तो चेंज हो जाएगी. You can add, detract or modify, but some plan you must have. So let us plan. So when you are faced with injury, the first thing is save yourself and move yourself as victim to safe place. Third thing is judge the situation, whether you have sufficient resources to manage the disaster or you need to call for help. Therefore, help contain the disaster. अगर मान लो कहीं पे कोई बांध टूट रहा है तो पहला काम ये है कि बांध बन जाए, ठीक है, जिससे कि डिजास्टर कंटेन हो जाए. चौथा है कॉल फॉर हेल्प. ये भी बोलने का तरीका है. This has happened at this place. So many are affected in this manner. So much help is needed of this type. The help has to come through this route. ये सारी चीजें जो है कॉल फॉर हेल्प में डिफाइन हो जाती है. And preferably it can be a SMS, which is written cryptic, and then followed by a call. पहले क्या कहना है, इसको राइट कर लो, है ना, और फिर राइट करके कॉल फॉर हेल्प. एंड फिफ्थ इज
क्लासिफाई। जितने लोग बीमार हैं उनको क्लासिफाई करो into walking, talking, breathing. And bleeding, broken, back. इसको क्या कहते हैं? ट्रायज कहते हैं। हेलो, हाँ भैया क्लास में है, बाद में बात करना। तो वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग, ब्लीडिंग, ब्रोकन, डाइंग। वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग से गेट हेल्प, ऑर्गेनाइज देम टू हेल्प, एंड दिस इज गिव हेल्प। करेक्ट? तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डेट। ठीक है? तो डेट कांट बी हेल्प। Therefore, learn to recognize death. Learn to recognize death. And they are recognized by seeing three tripods of light. Most importantly, fixed dilated pupils. Fixed dilated pupil, not breathing, no heart. Dead. Then the first person to be helped is this, and which means not brain dead but cardiorespiratory, pending cardiorespiratory failure. समझे? कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर है तो कार्डियोरेस्पिरेटरी रिससिटेशन होना चाहिए। तो इसकी टेक्निक तुमको कहां सिखाई जाती है? ACLS, PNPLS। हाँ, बहुत जबरदस्त सिखाई जाती है। पर सवाल इस बात का कि इसका टेक्निक का इम्पैक्ट बहुत फ्रूटफुल नहीं है। करोगे तो 10-20% बच जा पाओगे। Far more important is bleeding, and then broken. Bleeding for death and broken for disability. तो उसके बाद जो है help at roadside, then transport appropriately with full information. Plus minus assistance. क्लास में हूँ। So this is your checklist. All right. Now, let us deal with bleeding. All right. Why should a person bleed?
the person bleeds because the blood vessel has a rent in it and the inner pressure is higher than the outer pressure. Therefore, there is a outflow of blood. So, what are the principles of stopping bleeding? Decrease big pressure, increase outer pressure, wait for clotting. How do you decrease inner pressure? Elevation. The second principle is pressure on supplying blood vessels. Third method is tourniquet. Alright? This is pressure, manual pressure direct. And second is compression bandage. ठीक है? कॉम्प्रेशन बैंडेज कितने लोगों ने बांध दिया इसका? Anybody has tied compression bandage among you? हाँ? किसी ने बांधते देखा था भी कॉम्प्रेशन बैंडेज? हैं? देखा था? दिखाया था? तो सब लोग का होमवर्क है एक कॉम्प्रेशन बैंडेज बांध के जरूर देखोगे. This is your homework. You will learn this thing of tying a compression bandage. And what are the four principles that govern application of tourniquet? Anybody? The four principles are: only tie a tourniquet if you must. खास तौर से अगर एम्पुटेटेड स्टम्प्स में मेजर ब्लड वेसल ब्लीड कर रही हो, जिसमें कि टूर्निकेट अप्लाई करने से गैंग्रीन का डेंजर नहीं है, तो टूर्निकेट अप्लाई करना चाहिए. So the first thing is only if you must. और मस्ट की जगह ये है कि जब गैंग्रीन का डेंजर ना हो, है ना? The second thing is always on a single bone. Never in the forearm or the leg. The third principle is not too tight and not too loose. And the fourth principle is note the time and ensure that the tourniquet is released for 5 minutes every 45 minutes in the upper limb and every 90 minutes in the lower limb. ये चार प्रिंसिपल्स कभी नहीं भूलने. टूर्निकेट बांध दिया और टाइम नहीं नोट किया, फंसोगे. दूसरी बात यह है कि अगर टूर्निकेट ओटी में बांध रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में बांध रहे हो, ऑलवेज टाई द टूर्निकेट टू द टेबल.
चिट्टाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मरीज टूटने के बंधा हुआ बाहर चला गया और जब पोस्ट ऑपरेटिव में खोला तो गैंग्रीन हो गई। तो ये 5 प्रिंसिपल्स जो है वो टूटने के बांधने के बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रेशन बैंडेज कैसे बांधी जाती है, ये हर एक आदमी माने, एवरी सिंगल पर्सन मस्ट नो हाउ टू टाई अ कॉम्प्रेशन बैंडेज। अब ब्लीडिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लीडिंग? ब्लीडिंग का कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये है कि क्या कॉन्सिक्वेंस? शॉक। What is shock? Impending circulatory failure. Shock is a state of impending circulatory failure due to disparity between vascular bed volume and circulating vascular bed volume. This is bed and circulating blood volume. Okay? So vascular circulating is cardiogenic और ट्रॉमा में कार्डियोजेनिक शॉक कौन होता है? टेम्पोनेट। ठीक है, ये पेरिकार्डियल टेम्पोनेट होगा और ये जो है टेम्पोनेट की शॉक की खास बात क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस शॉक? बोलो जल्दी बोलो, कम ऑन, एमसीक्यू हैं? कैसे कहोगे ये टेम्पोनेट है? पल्स नहीं है, पल्स नहीं फील हो रही, कैसे कहोगे टेम्पोनेट है? Feeble heart sound. हार्ट साउंड और सब कुछ नहीं, सीरीज बड़ा होगा बस, जिसको कहते हैं पल्सस पैराडॉक्स। सीवीटी अगर इंस्पिरेशन में बढ़ जाता है इसका मतलब कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम ब्लड लॉस में घट सकती है, प्लाज्मा लॉस में घट सकती है। ब्लड लॉस इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। प्लाज्मा लॉस बर्न्स में होता है या फ्लूइड लॉस में घट सकती है, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, और यह सीक्वेस्ट्रेशन में घट सकती है। सीक्वेस्ट्रेशन में यह होता है कि जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वेन्स कंप्रेस हो गई, वेन से ब्लड लॉस नहीं हो रहा और आर्टरीज पंपिंग ब्लड इनटू द इंटेस्टाइन, क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर इज मच हायर देन वेनस प्रेशर। तो जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा इंटेस्टाइन का, इट इज हायर देन वेनस प्रेशर बट लोअर देन arterial pressure. Therefore, arteries keep pumping blood, veins don't return it, and therefore part of circulation is sequestrated or removed from the rest of the circulation. Intestinal obstruction में there is what is called as sequestration shock. So ये impending circulatory failure, why is this situation causing a impending circulatory failure? ये सर्कुलेशन फेल क्यों होगा? क्योंकि इस सर्कुलेशन के फेलियर से एक चीज प्रोड्यूस होती है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया। जब एनॉक्सिया प्रोड्यूस होता है तो दो सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक कॉम्पेंसेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक विशस साइकिल एक्टिविटी। Compensatory system wants to increase blood volume, and second, it wants to economize circulation. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने के तरीके क्या है? वाटर कंटेंट बढ़ा देंगे, स्प्लेनिक
hepatic sinusoid collapse. तीन से 300 सीसी ब्लड आएगा, लिवर से 500 सीसी। ठीक है, ये कोलैप्स हुआ फॉरन, तो इंटरनल ट्रांसफ्यूजन हुआ 800 सीसी ब्लड का। इसके बाद दूसरा क्या हुआ, वेन कोलैप्स हो गई। तो वेन जब कोलैप्स हो गई तो वेन्स में ब्लड की कैपेसिटी होती है 3200 सीसी। ठीक है, काफी पार्ट ऑफ दिस 3200 सीसी गोज बैक इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, तीसरा बात, थर्ड, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुई, जनरल जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर सर्कुलेशन कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ने रेनिन सीक्रेट की। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 और 2 में बन गई। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 1 और 2 में से एक जो है उसने सीक्रेट की एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम प्रोड्यूस किया, और सोडियम के साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। इसके बाद इकोनॉमी ऑफ सर्कुलेशन। इकोनॉमी ऑफ सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि किडनी में, लंग में, ब्रेन में और हार्ट में ब्लड वेसल डायलेट होंगे, और बाकी सब जगह कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और इसका मैकेनिज्म जो है वो जनरल भी है। जनरल एक स्टीरॉयड बेस्ड है जो कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है, उसकी लीक रोकता है, लीक स्टॉप। मतलब एनॉक्सिया जो है ना सेल का, वो ब्लड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन लीक कर रही है, तो ब्लड प्लाज्मा लीक कर रहा है इनटू टिश्यू, वो लीक रोकता है स्टेरॉइड। ठीक है, दूसरा चीज है एड्रेनलिन, जो कि जनरलाइज वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करती है और कार्डियोटोनिक इफेक्ट है। ठीक है, कार्डियोटोनिक मींस कार्डियक आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करती है बाय इंक्रीजिंग, प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट। तीसरी चीज है सिंपैथेटिक सिस्टम। इस सिंपैथेटिक सिस्टम की दो है, नॉर एड्रेनलिन और डोपामीन। डोपामीन इसलिए एडवांटेजेस है कि डोपामीन रीनल सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ठीक है, तो ये दो प्राइमरी इफेक्ट्स हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना एंड इकोनॉमी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब विशेष साइकिल ऑफ शॉक में क्या होता है? विशेष साइकिल ऑफ शॉक में जो तुम्हारा एनॉक्सिया है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, एनारोबिक। तो कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी, लैक्टिक एसिड। तो इससे जो है क्या चीज बढ़ेगी, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, इससे होगी एसिडोसिस, और इससे जो है वो
कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ती जाती है, एडिमा और हेमरेज होता जाता है, और वेलोडाइलेटेशन होता है। So depending on whether this is winning or this is winning, the shock is initially compensated. Compensated का मतलब यह है कि कोई साइंस नहीं अपीयर हुए, ऑटो ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, ठीक है? Then shock is decompensated but reversible, and finally the shock is irreversible. So there are three stages of shock. All right. So how do you diagnose shock? What are the cardinal things that control your management of shock? देखो पैथोजेनेसिस हो गई शॉक की. What are the cardinal things that help you control shock? मैनेजमेंट के जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल्स है शॉक के वो क्या हैं? सबसे पहले हाउ डू यू डायग्नोस? चलो बोलो. डायग्नोस है hypotension and tachycardia. Okay. If you diagnose by hypotension, now remember this for always in your life. If you diagnose by hypotension, tachycardia, cold clammy skin, gasping patient, you have diagnosed shock for post-mortem purposes. You will be able to do nothing. Therefore, shock is always diagnosed by suspicion. Suspect. More you suspect, safer you are. ये नहीं सारा सर्जरी करते में पूल ऑफ ब्लड जो है जमीन पे इतना दिख रहा है, तब आपको जो है टैकीकार्डिया दिखना शुरू हुआ. You're a fool. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू मिनिमाइज ब्लड लॉस. अगर बहुत तुम्हें वैस्कुलर ट्यूमर बड़ा सा दिख रहा है और खूब सारी वेन्स दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि यहां से लेके यहां तक इंसिडेंट बना दिया. 10 वेन इधर से फुट गई, 5 वेन उधर से फुट गई. अरे भाई एक एक वेन के ऊपर छोटा छोटा इंसिडेंट बनाओ, बांधते जाओ, तो ब्लड लॉस की रेट भी घट जाएगी और ब्लड लॉस ओवरऑल भी घट जाएगा. तो जो सर्जन ब्लड लॉस कम करना नहीं जानता और सस्पेक्ट नहीं करता शॉक, वो डेंजरस सर्जन है. ठीक है? दूसरा, सर्जरी जो सर्जन सेफ है और जो सर्जन अच्छा है वो ब्लड लॉस रोकने जाता है. ठीक है? तो यू ऑलवेज डायग्नोस शॉक बाय सस्पिशन. ये तो पक्का याद हो गया. देन replace blood by blood as soon as possible, as fast as possible. Simple principle है. Replace blood by blood as soon as possible, as fast as possible. If not blood, plasma. If not plasma, plasma expander. What is plasma expander? High molecular dextran, because that has the osmotic ability to take fluid into the intravascular compartment.
Then help economize circulation. Economize circulation means try to stimulate the sympathetico-adrenal system, and that is usually done by dopamine. पहले नॉरएड्रेनालिन देते थे, अब डोपामीन देते हैं, because that spares renal, prevents renal shutdown, or spares the kidney. चौथा, you can give steroid. Steroid will prevent leak. पांचवा, you will monitor the patient. And छठा, you will treat the cause. Is this absolutely clear? What do you do about bleeding in shock? All right? सर ब्लड का इन्फ्यूजन रेट तो थोड़ा स्लो होगा ना, अगर पेशेंट को ज्यादा वॉल्यूम कम हो गया है तो उसके स्टमक को मोटे कैनुला से जुगुलर वेन के थ्रू दो, सेंट्रल लाइन, वो भी कम पड़े तो पंप लगा लो, समझ गए? रिंगर लैक्टेट से कुछ नहीं होने वाला, ब्लड वॉल्यूम को कुछ नहीं होता, जितनी तेज दोगे उतनी तेज किडनी में निकल जाएगी। अब क्या देते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो चीज है परफ्यूजन फेलियर है ना, ठीक है? तो परफ्यूजन इंक्रीज करने के लिए लोमोडेक्स दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर डेक्स्ट्रैन, इसी फैमिली में रिंगर लैक्टेट भी आता है। और दूसरा एनॉक्सिया हो रहा है, इसलिए क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन। मतलब जो विशेष साइकिल ऑफ शॉक है उससे डील करने के लिए लोमोडेक्स एंड ऑक्सीजन ऐड कर, ठीक है? तो शॉक से और ब्लीडिंग से डील कर लिया लोगों ने, अब ब्रोकन से डील करें, ठीक है? जो ब्रोकन है, जो कुछ भी ब्रोकन है, वो दो में क्लासिफाइड है। क्या? एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, और एक तीसरा रख लो कॉम्प्लिकेटेड। जो ब्रोकन है, ठीक है? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का है स्प्लिंट and 3 R's: reduce, retain, rehabilitate. इतना छोटा ऑर्थोपेडिक्स किसी ने नहीं पढ़ाई होगी फ्रैक्चर की और डिस्लोकेशन की, ठीक है? नाउ रिटेन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, और इन बिटवीन। एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं ना, इंटरनल, एक्सटर्नल और इन बिटवीन। ऑलराइट? रिड्यूस, रिटेन, रिहैबिलिटेट। स्प्लिट, रिड्यूस, रिटेन, रिहैबिलिटेट। Basically diagnose the displacement by X-ray.
compound fracture. It is called as debridement, or it is also called as wound excision, which simply means within 6 hours, that is the golden period, before infection can really establish. Remove all foreign material, remove all dead or dying bone, cut off the margins, enlarge the wound, ensure a surface on which granulation will come. मतलब टेंडन हो, मसल हो, बोन हो, तो बोन को ऐसा कवर कर दो कि granulation will come. And try to ensure skin cover. So basically wound excision के ये principle है. Wash means remove all things that can float away. Resurface. एक resurface कर दोगे तो जितना solid उस पर तब भी चिपका वो भी निकल गया. Dead or dying. मसल अगर डेड है तो उसको रिमूव कर लो. Find out the exact magnitude of injury. कौन सी नर्व, कौन सी वेसल, कौन सा टेंडन, कौन सी बोन. ठीक है? Ensure drainage and ensure skin cover. These are the principles of debridement. And now dealing with complications. ठीक है? So what are the complications? Nerve injury, vascular injury, visceral injury. And what are the viscera? Brain, nose, ear and eye, trachea, esophagus in the neck, chest, abdomen, pelvis. Alright? तो ये वाला आता है फेशियोमैक्सिलरी. This comes in neurosurgery. This comes in faciommaxillary. This comes in surgery, general surgery. This comes in chest, CTVS. This comes in general surgery. And this also comes in general surgery. And each of these forms a separate limb. Each of these forms a separate limb. Just to lecture like this. Alright? You must ensure that these lectures are given to you. Alright? So this is broken. And of course, dying you must have done this BLS, ACLS, ATLS. So you know how to do a CPR, cardiopulmonary resuscitation, how to deal with the emergency of cardiac arrest. So after dealing with this bleeding, broken and dying, you put the patient in orally, give an antibiotic, ensure appropriate referral with full information and assistance. That means somebody who can look after the patient during transportation should accompany the patient. And usually it is the ambulance driver.
and the EMT, emergency medical technician, that is usually there with each ambulance. Alright? And that ambulance is usually connected, should be connected to the main hospital, so that the hospital knows who's coming and what is the condition, and can also give advice, timely advice during transportation. Alright? Because what is important, that the CVT is time critical. Simple things done in time will help the patient far more than too much, too late. Too much, too costly, too late. Alright? So this is the management of a patient who is injured on the roadside. Do you have anything to add to this? Subtract from this? Modify? Follow. So this will tend to go into posterior angulation. है ना? Give me a sponge or something so that I can clean the limb. दो बोल दो ना। So there is no such tearing need of anesthesia. Sir. You should be able to. सर ऑस्ट्रेलिया में बीटाडिन दो। हैं? ऑस्ट्रेलिया में बीटाडिन। इसमें सेवलॉन देते हैं सिंपल। बीटाडिन है सर। बीटाडीन। थोड़ा बहुत जो है बाल में है सर यहाँ। कॉटन चिपका होगा, वो छूटेगा, समझे? तो बाल नोच सकते हैं थोड़े बहुत, इसलिए दर्द हो सकता है। वो बाल ही नोच रहे हैं, समझे? Take the patient into confidence. करिए सर सर। As soon as you put something which is a surfactant like Savlon, the cleaning is highly influenced. Surfactant means soap. ठीक है? साफ तो करोगे ही, क्योंकि साफ बिना किए तुमने 3 महीने के लिए छोड़ दिया अगर इसको, तो कोई फायदा तो है नहीं। दूसरी बात क्या होगी कि सेवलॉन हैज गॉट अ फिनॉल कोफिशिएंट, ठीक है? बीटल वॉकर कोफिशिएंट सुना है तुमने? The presence of phenol of this Savlon or betadine will kill all bacteria on the surface. Correct? Especially on wounds. ठीक है ना? फार मोर क्लीनर। साफ हो गया ना सर? बीटाडीन
सर बैक की साइड Especially the wound area, we are going to use something which has a much higher phenol coefficient, स्क्रब like betadine. स्क्रब सोल्यूशन स्क्रब देखा ना? Now you see that if it unites in this position, it's almost a normal leg. Can you see that? Normal. ये स्क्रब है सोल्यूशन है अच्छा डाला हुआ है ये स्क्रब है स्क्रब स्क्रब जरा थोड़ा सा यहाँ पे अपना इसके नीचे से लगा के हाथ अपना यूँ लगा के इसको पकड़ लो, एज को, ये उठा रहेगा, इसके एज को पकड़ लो, नीचे वाली एज को। तो पहले ही आप अलाइन कर चुके हैं, हम्म, जो लैटरली मूव कर रहा था उसको पहले अभी नहीं किया। जब वो सेट होने लगेगा उस समय भले अलाइन कर लें, और क्योंकि मुझको सीधा दिख ही रहा है, मैं आई आर सीइंग दैट दिस इज स्ट्रेट, सो बट यू आर नॉट श्योर बिकॉज स्वेलिंग तो चारों तरफ होता है। ये तो स्वेलिंग नहीं है। सर इस तरह से swelling है। तुम स्वेलिंग के चक्कर में ना पड़ो, तुम ये देखो कि लिम जो है ओवरऑल शेप जो है वो नॉर्मल दिखती है नहीं, ओवरऑल शेप इधर से आके देखो पीछे से, वो नॉर्मल दिखती है ना। तो तुम ओवरऑल शेप के चक्कर में पड़ो, जिस समय ये सेट हो रहा होगा उस समय यहाँ पे मैं एक बार लगा के प्रेशर दूंगा यूँ, उससे ये जो इंट्रोसियस स्पेस है ये मेंटेन हो जाएगी। मूवमेंट सिर्फ बार लगा जो देखना वो ट्रैक्शन उसमें जो हमारी बार क्या मतलब, एक जिप्सोना की स्ट्रिप होती है ना वैसी हाँ सर होगी ना, यस सुना है सर जिप्सोना है उसकी स्ट्रिप निकाल लेंगे, उससे देंगे। इनका बाहर जो ट्रीटमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, तो उस बाहर ट्रीटमेंट का कॉस्ट मालूम है क्या था? नहीं मालूम। 5 to 10,000 1,00,000 रुपए। सर 1 लाख 1 लाख था। जरा सा तुम आके इसको इधर से पकड़ लो, इस तरह से थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन में पकड़ना है, न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। एंड यूँ पकड़ के इसको ट्रैक्शन नीचे को थोड़ा दिए रहना, है ना, बस दैट्स इट। और तुम अपना इसको जो है पकड़े रहना। ऑलराइट, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि फट से स्टॉकिनट चढ़ा देंगे पहले। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉकिनट, ओके। ये स्टॉकिनट में लगाया, तुम इसको इसके ऊपर से पकड़ लेगा ही, तो एक जना फेस देखता रहेगा उसका, ठीक है। ऐसे मत करो, तुम अपना पकड़े रहो। आई विल पुल इट। Gently, gently, gently. Don't move it. Very, very gently, okay? And now you hold it like this. And with the pressure, keep pulling. Okay? समझ रहे हो? इसको इधर से खींचो, इसको लेफ्ट हैंड से खींचो. Just pull it like this, no? Pull it up, okay? And pull this down, and make sure that there is no rotation. This is it, okay? Give me just one.
This is called as gypsona. All right. All right. Tighten it like this. Wet it. देखो रोटेशन बिल्कुल सही रखना, बस को सीधा रखना है. यहाँ से घूमेगी पट्टी मेरी एक बार, ठीक है? ठीक है. ठीक है. And what I do now is that I do like this, so that I remove all air bubbles, so that this plaster when it sets, it's very strong. ठीक है. All right. The next thing I do is I put this gypsona strip in the interosseous space and touch it. बस हो गया. So it aligns the tibia. तुम अपना प्रेशर, न्यूट्रल रोटेशन, काफ्टर सेट्स. See, you have produced the minimum pain, minimum movement. Sir, once it sets in, you will remove it. You will remove the strip. You will remove this. All right. But we have put it on the medial border of tibia to try to push the medial border, and yet not push the fibula. Interosseous space maintain किया है. I could feel the movement, okay? So there is some shifting already done. And now let this consolidate. ठीक है? I need a knife so that I cut off this edge. Blade है वो. ठीक है ना? Now you maintain it in this position. Just simply maintain it. Blade Now है this will not move. So, blade. वो तो एज हो गई थी ना इस तरह की. फील की इस तरह की एज हो गई थी, तो it should not be inside. ला भाई दूसरी वाली तो that plast. यही वाला यही है. यही है. ओपन करो. इसे कट करो. अच्छा. हाथ से मत छू उसको. Don't touch with hand. Don't touch it with your hand, otherwise it will not be able to remove it. Always use gloves. Now I'll want it in a neutral position so that he can walk on it, okay?
ऐसे ऐसे इसको यूँ खींचे रहो ऊपर बस, ठीक है। वो बहुत स्ट्रांग है जो दूसरा लगा रहा है उसके ऊपर। वो तो क्विक सेटिंग था इसलिए लगा दिया कि बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, है ना। उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कितना अलाइनमेंट आएगा और बिल्कुल चून से चून भिड़ जाए, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो गांठ लग के जुड़ेगा और बढ़िया मोड रिमोट कर लो। उठो उठो नहीं यार, बैठे रहो एंड डोंट मूव, ओके। उसको कोई दर्द नहीं होने वाला। आर्च बना दिया, ठीक है। ये न्यूट्रल पोजीशन में आएगी करीब करीब, नहीं? यस हम्म, यस। छोड़ दो। इसको जो है यूँ करके खोला, अब नहीं घूमेगा ना, यस अब नहीं घूमेगा ना, यूँ करके तो इसको होल्ड कर ऊपर लिया, हाँ। अब इसको यहाँ से काट दो, यूँ करके इसको यूँ काट लो, यहाँ से काट लो। ब्लेड कर दो, ब्लेड दो। चल इसको काट दो। बस यहाँ पे थोड़ी दूर से, थोड़ा लंबा रखो। इसको थोड़ा सा यूँ करके ये कर दिया, रोल अप कर दिया, है ना। इस तरह से रोल अप कर दोगे अगर तो ये राउंड रहेगा, लगेगा, गड़ेगा नहीं। चलो नेक्स्ट पट्टी दो, नेक्स्ट सर। खोलो। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, सो दे लोगे सब लोग प्लास्टर, हैं? अब क्या देखते, आँख से जो है ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस अलाइनमेंट सीधा है नहीं सीधा है, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा है वो सब जुड़ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी, नेचर जोड़ देगा। पर ऐसा नहीं है कि एक्सरे नहीं कराएंगे, एक्सरे करा के देख लेंगे भाई ठीक है नहीं, ठीक है।
चलेगा हील पे, तो हील मजबूत होनी चाहिए, नहीं? ये देखो, ये इसको रोक लिया इसने, ये रोक लिया, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो हो जाएगा बिल्कुल लोहा लाट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। खूबसूरत आ गया, एम्स पटना का लगता है ना। यस सर। लिख नहीं बोलना चाहिए, एम्स पटना वाला, समझे? शुड स्पीक दैट किस इंस्टीट्यूट में लगा है। वैसे स्टूडेंट के चेहरा देख के पता लग जाए एम्स पटना का, है ना। बात करें बस क्लियर, वो जो है तुम्हारे हाथ में लगाया, तो जैसे प्लास्टर को खूबसूरती से, वैसे ही तुम लोगों को भी खूबसूरती से पढ़ाया। निकलोगे कैसे, ये इश्यू है ना। You try to turn out beautiful students. I don't know how much will succeed. क्या घुटना सीधा करो अपना, कोई दर्द तो नहीं होता? फिर से सीधा करो, शाबाश। कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब नहीं एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन एनी रॉकिंग मूवमेंट एट द नी, अगर मैं अब नहीं दे दूंगा तो नी स्टिफ हो जाएगा। तो नी में पहले कोई स्वेलिंग तो है नहीं, इसका मतलब कोई इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर नहीं है। और ये घुटना चलाने वाला ने उसको दर्द नहीं होता, इसका मतलब ये घुटना चलाने से ये मूव नहीं कर रहा फ्रैक्चर। तो मैं कहा कि उसका घुटना जो स्टिफ करूँ, सही बात है? पक्का? फ्रैक्चर कैसा है? ट्रांसफर से। तो अगर इस पे वेट बेयरिंग आएगी तो फ्रैक्चर जो है वो इम्पैक्ट होगा, इसलिए जुड़ेगा बढ़िया। इसका टेस्ट ये है कि मैंने यूँ करके देखा, ये तो दर्द नहीं होता, इसका मतलब वेट बेयरिंग में दर्द नहीं हो रहा। हाँ, इसका मतलब मुझको वेट को इस फ्रैक्चर से पेडलर टेंडन पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, पीटीबी लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं इसके सेमी फ्रैक्शन में पीटीबी लगा के इस पे लिगामेंटम पटली पे मोल्ड कर देता, और जैसे ही ये सीधा करता पैर, वैसे ही वो पीटीबी पे प्रेशर आता और वेट ट्रांसफर हो जाता सीधे हील से, और फ्रैक्चर पे वेट बाईपास हो जाता। बट सिंस द फ्रैक्चर ट्रांसफर्स, मे बी आई डोंट नीड टू ट्रांसफर वेट, और चलने दूंगा नहीं मैं इसे, वैसे भी जल्दी नहीं चलने दूंगा इसको, ट्रक से चलाऊंगा जिससे कि फुट ऑफ द ग्राउंड। ऑलराइट, तब तक फ्रैक्चर जोड़ के पक्का हो जाएगा। ठीक, पीटीबी ने ठीक है, पक्का, एग्रीड। चाप पहन तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? को जब चाप पहना है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं है दिक्कत, नहीं है ना? नहीं, लूज है, पूरा टाइट नहीं होता ब्लेड।
आप पूरी सुबह खत्म करेंगे लॉन्ग सर्किट से अब ये क्या काम में आएगी? पूछने के काम में आएगी। ठीक है, एक और दो है। कोई मुश्किल है? हैं? अब रिडक्शन करने में डरोगे तो नहीं? हैं? मरीज ने चिल्लाया ऊ, तो आपने कहा ओ। फिर और जोर से चिल्लाया, बेचारा नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा। डॉक्टर साहब भी घबरा गए। नहीं समझे भाई? अब देखो, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्पाइका बैंडेज। ये है ना स्पाइका, स्पाइकलेट इन्फ्लुएंजा पड़ी है। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइका बैंडेज। हाँ, this is called as spica bandage. This makes it very, very beautiful. देख रही है स्पाइका? आराम से रहिए, आराम से रहिए। हाँ, कोई दर्द होए भैया? अब इनका जो कुछ भी खर्चा हुआ, चेक एक्सरे कराऊंगा। अगर रिडक्शन आ गया तो बल्ले बल्ले खर्चा खत्म। अगर नहीं आया तो फिर सोचूंगा कि अब ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करूं। तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कंजर्वेटिव रिडक्शन एंड प्लास्टर, देन ओपन इट। एडवांटेज कि ओपन, ये क्लोज फ्रैक्चर है, ये तो इन्फेक्शन होगा नहीं इसमें। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो इन्फेक्शन रेट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। तो सबसे पहले कंजर्वेटिवली ठीक करना चाहिए। ठीक है भाई, गुड। जरा छू के देख लेना तो पता लग जाएगा कितना कड़ा है। जस्ट टच एंड सी व्हाट इज हैपेंड टू इट।
ठीक है ना? यस सर। है लोहा